રામ કબીર, હા, તમે પ્રાર્થના ચાલુ કરી શકો છો. રામ કબીર. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. મન અંતરમાં જ્ઞાનને ધ્યાન ભરી. મન અંતરમાં જ્ઞાનને ધ્યાન ભરી. મન મહેકાવજે ગુરુ ઉપદેશથી. મન મહેકાવજે ગુરુ ઉપદેશથી. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. સાહેબ કબીરની શીખ અનોખી ગણી. સાહેબ કબીરની શીખ અનોખી ગણી. મર્મવાણી નો જાણી સમજી લેજે. મર્મવાણી નો જાણી સમજી લેજે. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. શુક્લ તીર્થ છે શ્રદ્ધા સ્થાનક આપણું. શુક્લ તીર્થ છે શ્રદ્ધા સ્થાનક આપણું. ગુરુવરની ચરણ રજ ત્યાં છે પડી. ગુરુવરની ચરણ રજ ત્યાં છે પડી. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. ઘટ ઘટમાં વસે છે જે પરમાત્મા. ઘટ ઘટમાં વસે છે જે પરમાત્મા. પ્રાણી માત્રમાં નિહાળીને રાજી થઈએ. પ્રાણી માત્રમાં નિહાળીને રાજી થઈએ. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. ગુરુ આશીષથી શોભે ભક્ત સમાજ. ગુરુ આશીષથી શોભે ભક્ત સમાજ. આચાર વિચારથી સદા સ્વચ્છ રહીએ. આચાર વિચારથી સદા સ્વચ્છ રહીએ. ગુરુએ આપ્યો છે મંત્ર શ્રી રામ કબીર. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. ધારણ કરી લે હૈયામાં હેત ધરી. શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય. સૌને રામ કબીર. રામ કબીર. સૌને રામ કબીર. ઓમ શ્રી
સદગુરુ કબીરાય નમઃ. આપ સૌ ભક્તજનોમાં વસેલ કબીરના રામ આત્મારામને સપ્રેમે વંદન. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA તથા સર્વે ચેપ્ટરો અને સર્વે ભક્ત સંસ્થાઓના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર, ફેસબુક લાઈવ અને સમય મળીએ યુટ્યુબ પર જોનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. કાર્યક્રમની શરૂઆતનું ભજન સાન એન્ટોનિયો ટેક્સાસથી શ્રીમતી અંજુબેન ભક્તે સંભળાવ્યું. સૌને ભાવવિભોર અને કબીર બનાવ્યા. સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે. થેન્ક યુ અંજુબેન. હવે આજનો વિષય લેટ્સ બી સ્પિરિચ્યુઅલ ભાગ 2, જીવનને આધ્યાત્મિક બનાવીએ. તે સબ્જેક્ટ ઉપર પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ આપણા જાણીતા યુવાચાર્ય પૂજ્ય સ્વામી શ્રી અભયદાસજી મહારાજ કરશે. જોડાયેલ ભક્તજનોને આ જ વિષયને લગતા પ્રશ્નો પર ચર્ચા વિચારણા સંવાદ કરીશું અને સમયસર કાર્યક્રમને સમાપ્ત કરીશું. વિશ્વવ્યાપી ભક્ત સમાજમાં મૃત્યુ પામેલ સૌ સ્વજનોના આત્માની શાંતિ માટે આપણે આજે પ્રાર્થના કરી. જીવન મૃત્યુના આ ઘટનાક્રમમાં આપણા સ્વજનોના મૃત્યુનો ખાલીપો દૂર કરવા તેમના પરિવારજનોને શક્તિ મળે, સદગતની આગળની યાત્રા સરળ અને સુખદ રહે તેવી સદગુરુને પ્રાર્થના. ભૂલે ભટકે ભક્તજનોને સત્યનો બોધ થાય, સનાતન ધર્મની સાચી સમજ અને બોધ મળે તે માટે 2 વીકથી સધન કેલિફોર્નિયામાં ગુરુજી સાથેના આધ્યાત્મિક સત્સંગોમાં મીરાબાઈ, ભક્તિપથ, કબીર, નોબેલ ટ્રુથ ઓફ બુદ્ધા, રિફ્લેક્શન ઓફ કર્મા, લેટ્સ બી સ્પિરિચ્યુઅલ જેવા આધ્યાત્મિક વિષયો ઉપર સત્સંગો થયા. હવે પછી આગળના સત્સંગોમાં રામ, કનેક્શન બિટવીન ડિવિનિટી એન્ડ યોગા જેવા આધ્યાત્મિક વિષયો લઈ સત્સંગ કરશે. તેમની આગળની યાત્રામાં ન્યૂ મેક્સિકો અને ટેક્સાસના ભક્ત પરિવારોમાં પણ સત્સંગનું આયોજન થયું છે. હાર્મોનિયમ અને તબલાના મ્યુઝિક સાથેના તેમના અદ્ભુત માર્મિક ભજનો અને સત્સંગોથી ભક્ત પરિવાર આધ્યાત્મિકના રંગે રંગાઈ રહ્યા છે. ગુરુજીનો વધુ પરિચયમાં સંસ્કાર ટીવી ચેનલો પર પ્રસારિત થતા તેમના આધ્યાત્મિક વિષયોમાં શ્રીમદ ભાગવત કથા, શ્રી રામ કથા, નાની બાઈ કા માયરા, મીરા કથા, ભક્તિમાલ કથા જેવી આધ્યાત્મિક વિષયો છે. 4 વર્ષની નાની ઉંમરમાં જ સંન્યાસ લઈ આજે આખા વિશ્વમાં સનાતન ધર્મની સમજ આપે છે. હાલમાં 150 વર્ષ જૂની સદગુરુ ત્રિકમદાસજી ધામ, તખતગઢ, પાલી, રાજસ્થાનની ગાદીના 5મા આચાર્ય છે. ભારતમાં પછાત વિસ્તારના બાળકો માટે ગુરુકુળ શાળાઓ બાંધી ચલાવી રહ્યા છે. સનાતન ધર્મ અને હિન્દુઇઝમને વર્લ્ડ રિલિજિયન પાર્લામેન્ટ શિકાગોમાં પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. વેદાસ ગ્લોબલી નો એવોર્ડ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે તેમને આપ્યો. જીનીવા યુએનઓમાં વિશ્વ દિન ઉજવ્યો. અયોધ્યાધામ રામ મંદિરમાં રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમમાં VVIP તરીકે ભારતના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબની સાથે ગર્ભગૃહમાં પણ પૂજનવિધિ કરી. આજે દુનિયાનું ઊંચામાં ઊંચું 405 ફૂટનું ભારત માતાનું સ્ટેચ્યુ રાજસ્થાનમાં આ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને વેલનેસ સેન્ટરની સાથે બનાવી રહ્યા છે. 28 વર્ષની યુવા વયે ગુરુજીએ આ અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. આપણું સૌભાગ્ય છે કે ઘર બેઠા પણ તેમના સત્સંગનો લાભ મળી રહ્યો છે. સધન કેલિફોર્નિયામાં આપણી વચ્ચે લાવનાર માનનીય શ્રીમતી પ્રીતિબેન મુકેશભાઈ ભક્ત બેનિંગ, કેલિફોર્નિયાના પરિવારનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA આપની આધ્યાત્મિક યાત્રા મંગલમય અને આનંદમય બને તે માટે શુભેચ્છા અને રામ કબીર. વિશેષમાં શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજની વાર્ષિક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ સાઉથ વેસ્ટ ભક્ત સમાજે આલ્બુકર્કીમાં આજે ફાઇનલ રમાઈ રહી છે.
24 ટીમ આશરે 1000 પ્રેક્ષકો સાથે ભેગી મળી છે. સર્વે ભક્ત ક્રિકેટરોને સમાજ વતી શુભેચ્છા અને બેસ્ટ ઓફ લક. 2024નું આ મેમોરિયલ ડે લોંગ વીકેન્ડ આજે દેશ માટે શહીદ થયેલ બધા જ યુએસ સૈનિકોને ઓનર કરીએ છીએ અને તેમના પરિવારોની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ સેલિબ્રેશનમાં શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ સર્વે અમેરિકનની સાથે જ છે અને સર્વેને મેમોરિયલ ડેની સમાજ તરફથી શુભેચ્છાઓ. હવે આગળ વધીએ કે આગલા કબીર વિઝડમ ના एपिसोड लेट्स बी स्पिरिचुअल भाग 1 में गुरुजी आपने एक टैग लाइन दी है, आध्यात्मिकता की शुरुआत आनंद से ही होती है और आध्यात्मिकता का लक्ष्य आनंद ही है. और भी कई बातें हमारे जीवन को आध्यात्मिक बनाने पर आपने की थी. आज हम सब साथ मिलके गुरुजी का अभिवादन करें और गुरुजी आप कृपा करो कि भाग 1 का रिकेप करें. આ યુવાન સાધુ આપણા મિત્ર બની ગયા છે. જેમ ડોક્ટર પાસે બીમારી છુપાવવી નહીં, તે જ રીતે જેવા છો તેવા જ બની આપણે प्रश्नोत्तरी संवाद करीશું. तो वेलकम गुरुजी. आज का सत्संग हम शुरू करेंगे. राम कबीर. राम कबीर. सभी मेरे जितने भी दर्शक हैं और प्रफुल्ल भाई, आप सभी को राम ही कबीर इस विचार के इसी सेशन के दौरान एक यात्रा आरंभ की थी. पहली बार जब हमने जाना था कि आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, और इसे प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने हर तरह के प्रयास आरंभ कर दिए. जब जब आपके मन में कुछ सवाल उठता है, जब जब आपके मन में असहजता पैदा होती है कि क्या मैं जो कर रहा था वो सही है, और जो स्वामी जी को सुनने के बाद लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वास्तव में नहीं करनी चाहिए थी, या फिर बिना जाने स्टिल आई एम डूइंग, ये सारे सवाल हमारे मन में हमेशा से आते हैं. और मैं भी हमेशा से कहता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हो गलत कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इससे किसी को आप नुकसान नहीं पहुँचा रहे. आज मैं आप लोगों की प्रशंसा करने का भी भाव में आया हूँ, क्योंकि आप वंदनीय हैं, प्रशंसनीय है इस भी कारण से कि आप कुछ तो कर रहे हैं. ये बेहतर है उन लोगों से जो कुछ नहीं कर रहे. लेकिन यह भी सत्य है, अपेक्षा उन्हीं से रखी जाती है, बदलाव की अपेक्षा उनसे रखी जाती है, विकास की अपेक्षा उनसे रखी जाती है जो खतरा उठा करके कुछ करना चाहते हैं. उसमें खतरा ये भी हो सकता है कि हमारा विश्वास ही टूट जाए. खतरा ये भी हो सकता है कि हमारा स्वयं के ऊपर और स्वयं के किए हुए क्रियाकलापों पर हम संदेह करने लग जाएं. उसमें विश्वास ये भी, खतरा ये भी रहता है जो कहने वाला है उस पर संदेह करने लग जाएं. उसमें खतरा ये भी हो सकता है कि हम वो सारी वस्तुएं करें जिसका कोई अर्थ नहीं है. खतरा ये भी हो सकता है कि हम नास्तिक हो जाएं. खतरा ये भी हो सकता है कि हम ईश्वर की व्यवस्था, धर्म, आध्यात्म, इन सब से दूर हो जाएं. इसका खतरा सबसे ज्यादा है. लेकिन ध्यान रखना, विकास की हर प्रक्रिया में खतरा तो होता ही होता है. हवाई जहाज बनाने वाले ने अगर ये सोचा होता कि एक दिन हवाई जहाज हवा में ही आग लग जाएगी, हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाएगा, तो क्या हम अंदर नहीं मर जाएंगे? लेकिन क्या उन्होंने विकास रोका? क्या उन्होंने गति रोकी? क्या आज भी लोग हवाई जहाज में बैठने से पहले डरते हैं? नहीं, वो बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे कि आसमान में क्या होगा. पंखा चलाने वाले ने, एसी बनाने वाले ने, घर बनाने वालों ने पहाड़ों में, गुफाओं में रहना तो सबसे सुरक्षित था, क्योंकि वहां तो घर टूटने का, भूकंप आने का भी खतरा नहीं रहता था. यहाँ तो घर में हम पंखा चला करके सो रहे हैं, कब पंखे का स्क्रू लूज हो जाए, पंखा हम पे गिर जाए और हम मर जाए, तो ऐसे में तो पंखा भी नहीं लगाना चाहिए. सिंगल स्टोरी हाउस बनाना चाहिए, डबल स्टोरी हाउस ही नहीं बनाना चाहिए. सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां उतरते हुए पैर फिसल गया और नीचे गिर गया और मर गया, तो
खतरा तो हर विकास में, रिस्क तो हर चीज में है, लेकिन फिर भी इंसान रिस्क लेता है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, और सावधानी रखी जाए तो ऐसा किसी के साथ कभी नहीं हो सकता। मैं बस उसी सावधानी के लिए आपको जागृत करता हूं, मैं बस उसी अवेयरनेस के लिए अध्यात्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने रखता हूं। मैं उसी अवेयरनेस के लिए ये आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब विकासशील लोग हैं, आप सब प्रगतिशील लोग हैं, आप सब भक्ति में, आध्यात्म में, धर्म में विकास करना चाहते हैं, उत्कर्ष करना चाहते हैं, आप लोग उद्यम करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से होप रखता हूं, आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग बेहतर से और बेहतर हों। आज मैं प्रशंसा भूरी भूरी आप लोगों की करूंगा कि आप लोग बेहतर हैं। कौन कहता है कि प्रफुल्ल भाई, हेमंत भाई, दीपक भाई, राज भाई, छगन भाई, बीना बहन, जितेंद्र भाई, अंजू बहन, प्रीति बहन, ये सब बेहतर नहीं है? आप बेहतर हैं, बेहतर हैं, इसलिए तो आपको मैं साधना चाहता हूं। बेहतर हैं इसलिए तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग विकास करो। बेहतर हैं इसलिए तो चाहता हूं कि आध्यात्म के चरम को जानो। बेहतर हैं इसलिए तो चाहता हूं कि आध्यात्म के मूल तत्व की ओर आप लोग आगे बढ़े। तो कभी भी मेरे कहे हुए कटु शब्दों पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको कठिन परीक्षा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बेहतर सिपाही की तरह देखना चाहता हूं। आपको पता है, जो सेना में जो भर्ती होते हैं सिपाही, उनको कितनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनमें भी ग्रेड है। इस तरह की कठिन परीक्षाएं करने वाले सिपाही बनेंगे, इससे अधिक करने वाले, विशेष ऑपरेशन में काम करने वाले सिपाही बनेंगे। उससे भी कठिन परीक्षा उनको दी जाती है जो कमांडोज होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल ऑपरेशन के लिए अपॉइंटेड होते हैं। उससे भी कठिन परीक्षा उनकी दी जाती है जो प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगते हैं। उससे भी कठिन परीक्षा उन्हें दी जाती है जो एनएसजी कमांडोज होते हैं, जो स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो स्पेशली भारत, यूरोप, चाइना, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इन सब की टास्क को समझाया जाता है, सबके साथ उनको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, सबकी कार्य क्षमताओं को परखने के लिए उनको भेजा जाता है। और जो सुप्रीम लेवल के कमांडोज होते हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर देश की परिस्थितियां, हर देश की सेना के साथ क्या वेपन है, हर देश में कौन कौन से वेपन के थ्रू कौन कौन से कमांडोज कैसे कैसे एक्शन लेते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसको समझने के लिए उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाता है। अर्थात हर विशेष और हर सुप्रीम चीज को पाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती। एक सामान्य सिपाही और एक प्रेसिडेंट की सुरक्षा में रहने वाला उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, उसमें रात दिन का अंतर होता है। वो भी सिपाही है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग विशेष हुई है। मैं चाहता हूं कि आप आध्यात्म की कक्षा की बात करते हैं ना, अर्थात आप सुप्रीम स्टेज की बात करते हैं, और सुप्रीम स्टेज के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा डीप, ज्यादा गहराई में, माइक्रो लेवल पर हर चीज को समझना और जानना होगा। अपेक्षा उसी से की जाती है जो बनना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी लोग मुझसे बात कर रहे हैं, आप वैसा होना चाहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप हथियार डाल सकते हैं, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। आप कह सकते हो कि स्वामी जी हम जैसे हैं वैसे ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। मैं आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका घड़ा भर चुका होगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपने घड़े को बार बार खाली करके पुरानी जो फालतू की चीजें हैं उसको निकाल के साफ सुथरी सधी हुई चीजें डालना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। जो नहीं सुनना चाहता उनके लिए कोई प्रकार का सेशन नहीं है। उनके लिए ना अध्यात्म है, ना धर्म है, ना व्यवस्था है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदा है, ना कोई कानून है। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि कुछ भी नहीं है उनके लिए, वो फ्री है। लेकिन ध्यान रखना, जो खतरा मैंने बताया डिप्रेशन का, जो खतरा मैंने बताया
एंजाइटी का जो खतरा मैंने बताया, अकेलेपन में खुद को कोसने का, वो बनेगा, वो बना रहेगा। चाहे मेरे पास आओ चाहे ना आओ, इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता है, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता है। चाहे आध्यात्म में रहो चाहे मत रहो, चाहे धर्म के नियमों पर चलो चाहे ना चलो, चाहे अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी को एक्टिव करो चाहे ना करो, उसे तो सबको झेलना है। जो मैं बता रहा हूं उसके अनुरूप चलेगा, वो उस झेलने की परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार है। और जो हथियार डालता है उसे उसमें जीना है, उस दुख में जीना है, उस समस्या में जीना है। मेरी तरफ से मैं किसी को नहीं बाधित करता। तो इसलिए मेरे सेशन में आना, मुझे सुनना कोई जरूरी नहीं। आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं इसलिए क्योंकि आप सुनने आते हो, चाहते हो। तो आज के अध्यात्म के सत्र का मूल है, जो मैं कह रहा हूं, क्या हम उसे कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, यह आज तय कर लो। अगर आप लोग सिर्फ सुन रहे हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट बुक अ फ्लाइट टिकट ऑफ अल्बुकर्की and just go there and watch the cricket match live and enjoy. Don't waste your time. Why you are here? Why you guys wasting your time with me? और मेरा भी समय मैं खराब क्यों कर रहा हूं? अगर आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको अपने जीवन में उतार के अपने डेली रूटीन में उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको फॉलो करना शुरू करें। भले थोड़े से करें, छोटी शुरुआत करें, पर अगर 1 मिनट की भी शुरुआत आप लोग कर रहे हैं तब तो मेरा ये आध्यात्म की चर्चा करना सार्थक है। नहीं तो कुछ देर के लिए धर्म आध्यात्म की अच्छी बातें सुन के अपने मन को बहलाना फुसलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक ढोंग है कि मैं 1 घंटे कबीर विजडम में आता हूं, खुद को बहलाना फुसलाना करता हूं और समाज के इस लाइव चैनल पर आकर के पूरे समाज को ये भी दिखाना चाहता हूं कि देखो भाई मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, देखो भाई मैं कितना आध्यात्मिक हूं, देखो भाई मैं कितना धार्मिक हूं। ये भी ढोंग करना बंद कर दीजिएगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन। तो आज मैं Q&A के सवाल में ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने कहा, जो चर्चाएं पिछले 2 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अमेरिका में सामने बैठकर या फिर ऑनलाइन डिस्कस करके, उस पर हम लोगों ने अपने जीवन में कितना बदलाव किया, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने जीवन में उतारी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने इन सेशंस के बाद, मेरे को सुनने के बाद, मेरे साथ विचार साझा करने के बाद, संवाद करने के बाद आप लोगों के जीवन में ये बदलाव आपने लाया। आज मैं वो जानना चाहता हूं और ये मेरा राइट्स है। अगर टीचर कोई लेसन देता है, वो लेसन आपने पूरा किया कि नहीं किया, इसकी जांच करना भी मेरा कर्तव्य है। इट्स माय ड्यूटी। सो आज Q&A के सेशन में, क्योंकि आध्यात्म के बारे में मैं फिर से वही बताई हुई बात मैं फिर से बोल दूंगा, अध्यात्म क्या है, हमें क्या करना है। लेकिन अब अगला स्टेप जानना है ना, तो अगला स्टेप ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो ये जानने के बाद। क्या शुरुआत आपने की अंजू बहन, क्या शुरुआत की आपने दीपक भाई, क्या बदलाव आपने किया छगन भाई, क्या बदलाव किया हेमंत भाई आपने, प्रफुल्ल भाई आपने, राज भाई आपने। सबसे मैं जानना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग बाद में भी अगर सुनेंगे ऑनलाइन, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। आई विल चेक द कमेंट टिल इवनिंग, कि शाम तक आप लोग जो भी सुन रहे हैं या कल तक भी मैं कमेंट चेक करना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जाके देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी बातों को सुनने के बाद अपने जीवन में ये बदलाव आरंभ किए जो मैं रोज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। या क्या किया जिसके बाद आपको कुछ समस्याएं आई, या ऐसा क्या किया जिसके बाद आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव आए, मुझसे आप शेयर करिए। बाकी मैं आपको हृदय से बता दूं, आप लोग भजन गाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, आप लोग अच्छा पद सुनाते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन मूल बात यह है, वो पद आप लोग नहीं भी सुनाएंगे तो मैं सुन लूंगा, या मैं खुद गा लूंगा, या मैं खुद स्मरण कर लूंगा।
ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वो पद कहना क्या चाहता है, वो भजन कहना क्या चाहता है, वो भजन क्या मूल हमें पहुंचाना चाहता है, उसको हमने जीवन में कितना उतारा, वो अनुभव आप मुझसे साझा करिए, यह आवश्यक है। तो आइए अब मैं लेट्स हैंड ओवर my mic to Praful bhai and just ask questions. Not only Praful bhai, everyone can ask. और जो लाइव देख रहे हैं वो लोग भी इसको मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अगर लाइव है तो। लाइव नहीं और सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो और बाद में लाइव चलाओगे तो जब सवाल आए उसको कल मुझे बता सकते हैं। दैट्स इट। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने गुरुजी। हम सब भक्त लोग आपके साथी है, हम सब आनंद में रहना मांगता है। हमारी भावना तो आनंद में सतत रहे ऐसी ही है, लेकिन हमारे यहाँ सांसारिक जीवन व्यवहार में जब भावना और व्यवहार के बीच में जो समाधान, जो समभाव, जो सच्चा भाव रखना मांगते हैं, तो वो कभी कभी हमको ये मायावी जाल में फंस जाते हैं और ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका उपाय बताओ। उसका उपाय है कि ऐसी और सभी अपना प्रश्न तैयार रखें। दीपक Raise भाई your ने hand. हाथ रेज किया है, आपके बाद दीपक भाई पूछेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां बने प्रफुल्ल भाई कि जब भावनाएं और व्यवहार जो करना ही है, जिससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन भावनाएं वो हमारे हाथ में है, उसे हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। इमोशंस हमारे हाथ में है, उसे प्रेजेंट करना है या कुछ देर के लिए दबा करके रखना है। ऐसा नहीं कहता कि अपने इमोशंस को हमेशा दबा के रखो, लेकिन उसके लिए सही जगह सही समय का चुनाव करो। आपका इमोशन कब कहां कितना निकलना चाहिए, इस पर आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जब इस पर आपका नियंत्रण आ जाएगा तो इमोशन एंड व्यवहार को क्या कहेंगे आप लोग, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो जो Everyday action. हाँ, Action every day, or what we do. सिंगल वर्ड, व्यवहार का सिंगल वर्ड क्या होगा? करनी इंग्लिश में क्या English होगा? में. मैं ये इंग्लिश में कर्म क्या करते हैं कि डूइंग जो सोचते हैं हम लोग वो करना चाहिए। इंग्लिश में डूइंग होगा व्यवहार का मतलब। एनीवन, कोई भी बोल सकता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं व्यवहार को? बिहेवियर। साहिब कॉरेस्पॉन्डेंट। हाँ, कोई बोल रहा था मुझे कॉरस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ साहब। साहिब बन गई साहिब। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंट में व्यवहार। हाँ वही कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, उसी से व्यवहार कहते हैं साहब। हाँ, मैं इसलिए ये वर्ड जानना चाहता हूँ कि जीवन में मुझे भी ये काम आने वाला शब्द है और मैं इसका इंग्लिश वर्ड जानना चाहता हूँ। वैसे तो बिहेवियर होता है, और भी इसका वर्ड हो सकता है, जो आप कह रहे हो वो भी है। उसका स्पेलिंग क्या है? CORES कॉरेस्पॉन्डेंट। CORES DS कॉरेस्पॉन्डेंस। यस, तो व्यवहार। यस, इमोशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस यानी बिहेवियर, इसके बीच का व्यवहार जो है वो है। इसको अगर बना के रखना है, व्यवहार और इमोशन के बीच में अगर ब्रिज बना करके रखना है, तो उसमें व्यवहार में कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो हाथ के बाहर की चीज है, उसे तो करना ही होगा। चाह करके भी आप व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। आप रखोगे तो अगला नहीं रखेगा।
लेकिन इमोशन एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर सिर्फ आपका 100% अधिकार है। तो हमें इमोशन को अभिव्यक्त अथवा इमोशन को शो करने के लिए हमें वो फर्क, एटीट्यूड भी होता है व्यवहार का मतलब, अलग अलग अर्थ मुझे पता चल रहे हैं। ट्रीटमेंट भी होता है व्यवहार का मतलब, डील भी होता है, डिमैनर भी होता है, हैंडलिंग भी होता है, डिपोर्टमेंट भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, मोल्ड भी, डीड का मतलब भी व्यवहार होता है, डूइंग का मतलब भी व्यवहार होता है, प्रोसीडिंग का मतलब भी व्यवहार होता है। व्यवहार के बहुत सारे अर्थ हैं। तो हम यहाँ पर जो अर्थ कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो। तो इमोशन और व्यवहार के बीच में हमें इमोशन पर ध्यान देना, तब समभाव बनना आरंभ होगा। तो प्रफुल्ल भाई का आंसर ये है। हाँ, दीपक भाई। थैंक यू गुरुजी। विदास जी, मैं माया के बारे में बोलूंगा। और जो लास्ट सेशन में हुआ था कि डॉक्टर चंद्र आस्क्ड मी कि मेरा कुछ भी नॉलेज है उससे भारतीय कल्चर को कहाँ से भी हर्ट नहीं होना चाहिए। सो आई विल कंपेयर दोस टू थिंग्स। आपने बोला थी कि माया क्या होती है, तो पेड़ रहेगा, पेड़ में से कुछ बनाना है हमको, तो ये जो रूप देना है उसको माया कहते हैं। जैसा कि अचार बना दी ट्री में से, उसी तरह जब ये हमारा पेपर है, साइंटिफिक पेपर पब्लिश इन एनवायरमेंटल साइंस एंड सही है। टेक्नोलॉजी। मैंने भी यही कहा था कि एक्चुअलिटी जिस समय बदल जाती है, परिवर्तित होकर दूसरा रूप ले लेती है, वो माया है। मूलतः मूलता का क्षरण, एक्चुअल चीज बदल जाती है, वो माया है। तो जब ये हमारा पेपर है, और जो लास्ट वीक बात कर रहा था कि MS डॉक्टर चंद्रशेखर आर्या, जो थर्ड साइंटिस्ट है, उसने हमारे साथ पास कंडीशन रखी थी कि वो हमारे साथ आप उसका नाम जोड़ेंगे अगर मेरे से इन द फ्यूचर इंडियन कल्चर को कहाँ से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो व्हेन डॉक्टर चंद्रा शो मी दैट पुट द कंडीशन, he was under Maya. He was trying to shape me somehow, which was never there. आपके साथ एक और ओकेजन से इवेंट्स शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा सा बाहर जाएगा। हमने मुंबई से दिल्ली बाइसिकलिंग किया है 1985 में। क्या किया राजस्थान? हाँ, मुंबई से दिल्ली क्या किया आपने? बाइसिकल, ओके, बाइसाइक्लिंग। जब राजस्थान में आए तो बहुत ऐसा अनुभव हो गया जो अभी भी हमारा दिमाग के अंदर बहुत बैठा है कि जब भी कुछ इंडियन कल्चर के लिए डिसीजन लेना है तो वो मेरे पहले ध्यान में आता है। वो क्या है, वो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। हमारे लिए मुंबई से जाना बाहर मतलब एक जैसा बर्ड नेस्ट छोड़ के जाता है, ऐसा पहला अनुभव था कि इतना लंबा जाएगा मैं। और जब वहां पे अरावली की पहाड़ी है तो ऐसा डूंगर रहता है छोटा, एक के बाद एक। तो हमने देखा कि ब्रिज के पानी जा रहा था, नदी बह रही थी, और वहां से बहुत सारी माँ बहनें घड़ा लेके जा रही थी पानी पर। तो जैसा भी हम ऊपर गया तो रुक गया, बोला कि ये कैसा कल्चर है, मेरे पास तो बाइसिकल है, अगर इनसे मैं पानी मांगूंगा तो मुझे दे देंगे, क्योंकि हमारे लिए डेजर्ट वो पहला एक्सपीरियंस था। कितने के घड़ा था, एक के ऊपर एक, 3, एक साइड में भी था, तो 4, कभी कभी बच्चा भी रहता है। तो ये सब जब हमारे दिमाग में आता है कि कुछ भी there is no expectation और आप मांगेगे तो पानी दे देंगे, तो कौन कैसा कल्चर है। तो ये कल्चर हमारे ध्यान में था। ये 1985 का एक्सपीरियंस है। और अबाउट 1991 डॉक्टर चंद्रा डिफाइंड मी इन हिज ओन वे। सो ये एक माया का अनुभव रहा हमारा कि जो भी उन्होंने सोचा वो उसकी दिमाग की सोच थी, लेकिन हमारा तो ऐसा सॉलिड था कि कल्चर कैसा कल्चर है। हम मुंबई में ही बड़े हुए और 88 में US आए हैं। इतना ही कहना है कि माया कैसी होती है जब हम दूसरे के रूप में देखते हैं। तो राम प्रदीप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और रही बात राजस्थान की, तो आपने जो राजस्थान वाला इंसिडेंट शेयर किया उसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संघर्ष की वो कहानियां, हम तो उसमें जीते हुए बड़े हुए हैं। और न सिर्फ राजस्थान, आप कच्छ में चले जाए, भुज में चले जाए, वहां भी यही कहानी है। लेकिन फिर भी वो जीवित रहे, किस लिए? किस लिए? क्योंकि वो इंसान थे। उन्होंने इंसानियत को जीवित रखा कि इंसान होना किसे कहते हैं। वो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में धारण किया कि ये संघर्ष के बाद भी मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं जानवर नहीं हूं जो लाचार हूं। जानवर भी अंतिम तक कोशिश करता है कि वो जीवित रहे, लेकिन इंसान जितना उद्यम नहीं कर पाता, इंसान जितना प्रयास नहीं कर पाता, इंसान जितना बुद्धि का उपयोग करके जीने हेतु और क्या क्या नए नए आयाम करने चाहिए वो नहीं कर पाता। और वो माताएं अगर ये सब कर रही हैं तो उनके अंदर जिजीविषा है जीने की, उसको जीवित रखने के लिए वो कर रही थी, अर्थात वो मूलता को जीवित रखना चाहती थी। हमारे पास तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल शेयर करेगा, किसी और को बोलना है तो, नहीं तो फिर शेयर करते हैं। हाँ, पहले सवाल लेते हैं, लास्ट में फिर एक्सपीरियंस आपके लेंगे। हाँ। थैंक यू। नो कोई सवाल? राम कबीर, लेटर। भाई अभी कोई सवाल नहीं है तो दीपक भाई से ही ले लेते हैं। नहीं, દયા સવાલ કાકાએ કાકા. દયા કાકાએ હાથ ઊંચો કર્યો છે. साहेब बन गए साहेब। राम कबीर सौम्य साहेब। साहेब, मैं जो बात करता हूँ वो बीजक की बात करता हूँ। और दीपक भाई ने जो कहा माया के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द माया साहेब, तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब माया को कैसे पहचानते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान आपको होता है वो सब माया है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ ज्ञान होता है जो सब माया है। मीन्स जो आप सुनते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं, जो ज्ञान होता है सब माया है। तो साहेब, हम भक्ति कैसे करें? परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं कि माया संतो आवे जाए सो माया, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, तो वो भी माया है। दृष्टि, लास्ट टाइम मैंने भजन गाया था यहाँ, मैंने जब आप थे साहब 2-3 वीक पहले, कि संतो दृष्टि परे सो माया, वह तो अचल अलेख एक है, ज्ञान दृष्टि में आया। तो कौन सा ज्ञान की बात करते हैं साहब? ये तो सब हम जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, जो कुछ क्रिया करते हैं सब माया है, सब माया है। तो भक्ति कैसे हम करें? कैसे आपका करें? सवाल ये है दया भाई, हाँ जी, आपका सवाल है कि ये सब कुछ माया है तो फिर भक्ति कैसे करें, यही सवाल? हाँ जी, हाँ जी। मैं इसका जवाब देता हूँ। कबीर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। मूलता का क्षरण ही माया है, अर्थात आंख का काम देखना है, ठीक है, लेकिन उस दृष्टि के प्रति आकर्षण माया है। कान का काम सुनना है, लेकिन श्रवणेंद्रियां अपने अनुरूप ही अच्छी चीज सुनना चाहती है, वो माया है। जीभ का काम रस लेना है, लेकिन जो मिल जाए उसको प्राप्त करते हुए ग्रहण करना, ये माया से परे। लेकिन जो मुझे चाहिए वही मुझे प्राप्त हो, ये माया है। रसेंद्रियों के वश होना, वशीभूत होना माया है। इंद्रियां माया नहीं है, इंद्रियों के वशीभूत होना माया है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, बापू, शरीर तो पूर्ण माया है, क्योंकि जब दृष्टि माया है, कान माया है, जीभ माया है, सूंघना ही माया है, स्पर्श ही माया है, तो ये भी सत्य है। क्यों? जब हम आत्म दृष्टि से देखेंगे कि मैं आत्मा हूं, तब तो आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब माया है। जो एक दिन नष्ट होना है वो तो माया ही है। जो टिका रहना है, अजर अमर रहना है, जो कभी समाप्त नहीं होना, वही तो माया है, वही तो माया नहीं है।
जो समाप्त हो जाएगी वो माया ही है। ये शरीर तो स्थूल है, ये तो माया ही है, ये तो नष्ट होना है। पर जब इस शरीर के साथ ही हमें उद्यम करना है, शरीर के साथ ही हमें भक्ति करनी है, तब इस बात को तय कर लो कि शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जिन कार्यों में हम इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, तब तक हम शरीर रूपी माया के अलावा जगत की माया में नहीं फंसेंगे। शरीर की माया में तो हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे तो त्यागने पर ही इस माया से मुक्ति है। ये सत्य है दया भाई, ये नहीं त्यागोगे ना तो मुक्ति ही नहीं होगी। लेकिन इंद्रियों के वशीभूत न रह करके भक्ति की जाए तो माया से बचा जा सकता है। ये कबीर इसका साहब कबीर साहब कहते हैं, कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन साहेब देह हमारो। मेरा हाँ देह मालूम इतना मुझे। मलिन है साहब। दया भाई साहब, हाँ जी। प्रॉब्लम इज दैट मैं भजन और सत्संग और कबीर साहब के सारे पद इस बात को इंगित करते हैं और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट एवरी वर्ड ऑफ कबीर साहेब। मैं उनके सारे विचार, सारे शब्दों के साथ पूर्ण सहमत हूं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जो हम कह रहे हैं, आज मैंने क्या कहा, जो हम कह रहे हैं उसको जी रहे हैं या नहीं, मेन थिंग इज दैट। इसलिए मैं आप लोगों से आज ये अपेक्षा कर रहा हूं कि आप अपने वो चीज बताएं जो आप कह रहे हैं और उस पे आप कितना चल रहे हैं, इसका अनुभव मुझसे शेयर करें। तो बीना बहन का एक कोई सवाल है? साहब वन मिनट साहब, 1 मिनट। अगर आप सुनते हैं मुझे तो 1 मिनट साहब। जी। हाँ, आपने कहा था लास्ट सत्संग में, कहीं राजू भाई के घर में और कहीं भी मैंने सुना है आपके धर्म से, कि जिसकी भी भक्ति करो, संसार में किसी की भी भक्ति करो, तो कबीर साहब तो ना कहते हैं किसी की भक्ति करने में क्या फायदा। भक्ति करो एक ईश्वर की, जो मालिक की, परमात्मा की भक्ति करो। सब इंसान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। आज मैं एक ले बैठ जाऊं, वो ले दया बैठ भाई, जाऊं, वो आप लगे बैठ यू यहाँ टुक खुदा द है ही रॉन्ग नहीं। डायरेक्शन। आई हाँ, डिडंट से एनीवेयर कि किसी की भी भक्ति करो। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति, किसी भी महापुरुष, किसी भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप को आप पूजो, मुझे उससे समस्या नहीं, लेकिन वो पूजने वाला स्वरूप मूल में कौन है उसे जान करके भक्ति की। आई हाँ, सेड हाँ, दैट। या दया भाई, हाँ यू जी। टुक द रॉन्ग मीन ऑफ माय वर्ड। ऐसा मैंने नहीं कहा कि किसी की भी भक्ति करो। मैंने ये कहा, चाहे राजू भाई के यहाँ कहा तो राजू भाई इज देयर, यू कैन आस्क देम व्हाट आई मेंट, मेरा अर्थ कहने का क्या था। प्रफुल्ल भाई के यहाँ भी कहा तो यू कैन आस्क देम व्हाट आई मेंट। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप शिव की भी भक्ति करते हो तो शिव कौन है ये तो जान लो। शिव भी वही निराकार तत्व है और इसको शिव को ध्याने वाले हर व्यक्ति ने कहा। शिव को किसी ने साकार बताया ही नहीं। शिव को चाहने वाले, शिव को मानने वाले हर व्यक्ति ने कहा शिव निराकार है, शिव निर्गुण है। ओके साहब, आई अंडरस्टैंड। Yes. बचपन से मेरा राम कबीर संप्रदाय में बचपन से न जाने कितनी परंपरा से हम गाते आए हैं, शंकर ध्यान धरे निश बासुर सो भी अगम बतावे। शंकर ध्यान धरे निश बासुर सो भी अगम बतावे। साहब, हम कैसे भक्ति करें शंकर भगवान की कि शंकर भगवान ने खुद को Again, शंकर भगवान you ने have a wrong information, Daya bhai. Again, you have a wrong information. No, साहब, this is नहीं, we नहीं. You speaking this have to bhajan in our understand community. about it. 1 minute. Without any आरतीओ information, साहब you सुनो, don't साहब carry listen please. on. Sahib, not wrong. We've been doing this RT maybe 200 years ago, 300 years ago, and Kabir Sahib के कई कितने भजन में बीजक में भी है. I can give you maybe 50 example, but one is example साहब. मैं आपको 5000 एग्जांपल्स दे सकता हूं दया भाई, अगर आप 50 दे सकते हैं तो साहब. तो who is better? साहब बीजक की बात है साहब, बीजक की नहीं, बहुत बीजेक बड़ा है. आए हुए 600 साल ही हुए हैं दया भाई. हाँ जी, लेकिन साहब एक बात सुनो,
हम गाते हैं हमारे समाज में। आपके समाज और आपकी बात यहाँ नहीं चल रही है दया भाई, यहाँ अध्यात्म की बात चल रही है। डोंट ये थिंक आध्यात्मिक बात योर है ये। समाज और योर आध्यात्मिक बात है, आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति के लिए ये बात है कि आरती आप हो ये देव क्लेम नहीं कर शिरोमणि सकते हो। नो, हमारी आई आरती एम है नॉट साहब। हियरिंग एनीथिंग दया भाई, आई एम नॉट सपोर्ट एनीथिंग। देन यू विल गाइस से कि शिवा, कृष्णा, राम ये सब माया है। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग्स। कबीर साहब सेइंग दैट साहब, नहीं, नॉट कबीर मी साहब ने कबीर कभी नहीं साहब। कहा दया भाई, कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। शब्द नंबर 9 और 10, बीजेक शब्द आप नंबर शब्द 9 नंबर और 9 10। निकालो, मैं रमैनी के 64वीं रमैनी, 72वीं रमैनी और 34वीं रमैनी तीनों पढ़ के देख लेना आप। बीजक मैंने भी पूरा पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है तो साहब, इसका शब्द नंबर रमैनी 9 नंबर और 72, रमैनी नंबर 64। या Read an actual meaning of that. I will tell you next. You will call me, I will tell you. पर अभी लाइव में आप चर्चा ना करें। नो साहब, ये तो बीजेक की बात है साहब, बीजेक की बात है। बीजेक को आए हुए 600 साल ही हुए दया भाई। हाँ जी, बीजेक की बात है बीजेक को साहब। आए हुए 600 साल ही हुए। क्या बीजेक से पहले किसी ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया? हम साहब, हमारे किसी के साथ लेना देना नहीं है। हमारा उपदेश है कबीर साहब का। हमारा उद्देश्य अध्यात्म है। हाँ, अध्यात्म करो समझो साहब। लेकिन ये आरती जो है, ये आरती जो है साहब, यही है। एक आरती सुनो आरती साहब। आरती हो देव शिरोमणि तेरी, अविगत विगत जुगत नहीं जानो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जितने प्रमाण दे आध्यात्म सारे प्रमाण मैं दे सकता हूँ दया भाई, पर आई विल नॉट एग्री विद यू। I am not agree with you. I am not agree with you, sir. No, राम ही कबीर, राम ही कबीर। इंटरप्शन के लिए क्षमा चाहती हूँ। राजू मामा टेक ओवर। दया भाई, ये पर्सनल है आपकी बिलीफ। और कैन यू हियर मी? बिकॉज आप सुन सकते हैं तो वो ओके। बिकॉज हमारे घर में बच्चे हैं तो फिर मैंने ये लगा दिया है। तो पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारा व्यवहार, जो एटीट्यूड और जो हम हर व्यक्ति के साथ हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके बीच में मेरा पर्सनल जो मार्ग है वो प्रेजेंट मोमेंट का है कि मैं कितना मेरा होश कितना है और प्रेजेंट मोमेंट में कितना मैं रहता हूँ। क्योंकि क्या करना पड़ता है कि भाई एक तो मेरे विचार क्या है, मेरे श्वास कैसे चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है। और आपने जो बुद्ध का मार्ग बताया था कि भाई सम्यक सम्यक सम्यक, राइट। तो इस सम्यक के लिए मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ तो होश अपना रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी काम करूं, चाहे मैं बर्तन मांज रहा हूँ कि फिर कोई किसी के साथ बात कर रहा हूँ कि कुछ बिजनेस में कुछ कर रहा हूँ, होश कैसे रहे। और क्या होता है, कई बार होश चला जाता है जी। और प्रश्न ये है कि भाई ये होश कैसे बढ़ाते रहें कि भी कुछ भी काम हो। काम तो छोटा मोटा है ही नहीं, वो तो हम ही डेफिनेशन देते कि छोटा काम है बड़ा काम है। लेकिन होश रखना जिसमें एटीट्यूड और अपना जो आपने कहा ना कि जो वाचा नोबल ट्रूथ में के दरमियान कहा था कि भाई हमारी वाचा, तो होश जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होंगे हम तो वाचा गड़बड़ हो सकती है। तो हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे, हमारा होश कैसे जगाते रहे कि पूरे दिन हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें हमारा होश ज्यादा से ज्यादा रहे। एक प्रश्न है। जो भी दिन भर में राजू भाई जो भी व्यवहार करते हैं उसमें जागृत रहने के लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम मतलब प्रयास, विकास। जो मैंने कहा ना कि जो आप कर रहे हो उसमें जब तक निरंतरता और स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रहे हो या स्टेप बाय स्टेप आप गेन कर रहे हो, इसका चिंतन प्रतिदिन करना पड़ेगा। जो कल वाले भजन का मीन था, जिंदगी ना चौपड़ा मा सरवाड़ू मांड जो,
अर्थात जो आप कर रहे हो इसका नित्य कैलकुलेशन करना बहुत आवश्यक है। आपके व्यवहारों पर भी चिंतन करना आवश्यक है। आपने अध्यात्म में भी जो उद्यम किया, जो भी विकास किया, कि आज मुझे ये अनुभव हुआ, इसको मैं अनुभूति करना चाहता हूँ। जो हमारे आदरणीय क्या नाम है उनका, दादा का क्या नाम था जो कह रहे थे कि मैं मधुभाई मधु भाई, वो वाले मैं प्रोसेस पे जाता हूँ। वो जिस मार्ग पर है, दिस इज द करेक्ट वे, कि वो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं यहां तक गया हूं, और वो वास्तव में जा रहे हैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बिना गए नहीं बोल रहे, वो सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे, वो खुद कर रहे हैं उसको। और मैं एक्चुअल में कह सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि आध्यात्म का जीता जागता नमूना है वो व्यक्ति मधुभाई। आप जाइए उनके साथ कभी बैठिए, उनकी प्रैक्टिसेस को देखिए। 101% मैं दावा कर सकता हूं कि वो आसन मार के इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो खुद को दिखा रहे हैं या परिवार को दिखा रहे हैं कि मैं बैठा हूं। वो बैठे भी होंगे ना तो वो किसी को झलक तक नहीं पड़ने देंगे, और वो अपना उद्यम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। पहले उद्यम करो तो सही, फिर शिखर को प्राप्त करने की बात करना ना। हम उद्यम ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर शिखर कैसे प्राप्त करें? तो होश लाने के लिए हमें नित्य हिसाब करना पड़ेगा। रोकड़ा बही जैसे बनाते हैं, रोकड़ बही क्यों लिखते हैं? हम इस होश में रहे कि हमने कितना कमाया और कितना खोया, इसलिए हम रोकड़ बही बनाते हैं। कितना रोकड़ है, कितना गया, कितना आया, नहीं तो हिसाब करने की क्या जरूरत है? प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा बचेगा, उससे पता चल ही जाएगा ना। लेकिन पैसा बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, कितना खोया और कितना बचा ये जानना उद्देश्य है। इसलिए रोकड़ बही बनाई जाती है। बाकी एंड ऑफ द डे हमें ये तो पता चल ही जाएगा ना कि हमारे पास बचा कितना, सब कुछ करने के बाद। प्रॉफिट का ख्याल करना यहां पर नहीं बताया गया। प्रॉफिट का ख्याल करना तो बताया है, लेकिन लॉसेस का भी ध्यान हमें होना चाहिए, कितना हुआ। तो वो होश में रहने के लिए अपने व्यवहार का नित्य निरंतर चिंतन होते रहना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा चले। दिस इज थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इवनिंग में जब भी समय मिले तब ये हिसाब करता रहना चाहिए। दिन में भी ऐसा नहीं है कि रात को ही बैठकर, दिन में भी जहां भी समय मिले तो उसको हमारा व्यवहार कैसा, मैं होश में था कि नहीं था। हाँ, बस और ऐसे ही वो आपने बताया कि उद्यम से, प्रयास से, एफर्ट से, जो भी शब्द हम यूज करें उससे। एंड ऑल्सो क्लैरिफाई दिस ऑल्सो कि मैंने आपके यहाँ पर व्यक्ति कृष्ण, व्यक्ति राम और व्यक्ति शिव की उपासना के लिए नहीं कहा था। हाँ, नहीं, नहीं। शक्ति शिव, उसी शक्ति राम, उसी शक्ति कृष्ण और उसी शक्ति कबीर थी जो सब में एक है। हाँ, सब में एक है। वो बस ऐसे ही आपने सही बोला बेटा। और ये जो दूसरा प्रश्न है कि माइंडफुलनेस, और ये माइंडफुलनेस जो शब्द है अभी की, तो पूरे दुनिया में एक बज़वर्ड हो गया है कि भाई माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। तो ये और होश दोनों चीज एक ही है कि फिर माइंडफुलनेस रहने के लिए कुछ कोई इसका अर्थ कुछ अलग है? माइंडफुलनेस रहने के लिए होश की जरूरत है, लेकिन होश से कई गुना ऊपर माइंडफुलनेस है। एक कभी नहीं हो सकती, वो एक प्रकार से सम्यक ध्यान है। थैंक यू वेरी मच। आभार। अभी कोई भी दूसरा प्रश्न हो? प्रश्न तो नहीं है, मगर अब 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट में, और जो बीना बेन ने लिखा है वो क्वेश्चन करना है, तो वो मेरे ख्याल से कल हो गया था। आपने पढ़ा गुरुजी? कौन सा? बीना बेन वाला सवाल बीना बेन खुद पूछे तो ज्यादा आनंद आएगा। बीना बेन, हाउ कैन वी कन्फर्म टू अवरसेल्व्स बाय दैट वी स्टे इन परपेचुअल आनंद when we are facing Muslims whose agenda is nothing but to spread Islam without themselves, understanding what Islam stands for. Online from Anand Bhai.
ये आनंद भाई का सवाल है, द सेम क्वेश्चन। इसका मतलब क्या कहना चाह रही है वो कि इस्लाम क्या क्या, मुझे कोई समझाएगा? वो एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आ रहा मुझे, उस ब्रीफिंग। मेरे ख्याल से वो ऐसे बता रहे हैं, लेट मी कम अंडरस्टैंड। कैन आई टेक अ इम्पोर्टेंट कॉल फ्रॉम इंडिया, जब तक आप आपस में इसका चर्चा करें प्लीज। और आज का सेशन अगर बंद करते, क्योंकि अभी 4 मिनट ही बाकी है, तो ये ये नेक्स्ट बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है, प्रफुल मुझे भाई, अभी अगर उठाना प्रफुल भाई अला पड़ेगा। करें। प्रफुल भाई आप फोन ले लो। आप फोन ले लो। फिर आप स्वामी, करिए बात, 5-7 मिनट और चलाते हैं सेशन। यस ओके। यस। તો પ્રફુલભાઈ, આપણે તમે હવે પછી જ્યારે આવે ત્યારે ક્વેશ્ચન માં એ કરી શકાય આપણાથી કે આનંદભાઈનો ક્વેશ્ચન જે છે ને તે આપણે Right. સમજી લઈએ કે ગુરુજીને Okay. જરા હેલ્પ થઈ શકે. હા, એટલે બીનાબેન જો આવી જાય ને, બીનાબેન ડિરેક્ટલી પૂછે તો એ ક્વેશ્ચન વધારે સોલ્યુશન આવે. બીના, બીનાબેન you you are can. online. Ram Kavi, sorry for the delay. गुरुजी, यस, आप पूछिए। आनंद भाई का सवाल क्या है, मैं उन धर्मों का नाम नहीं बोलूंगी कि दूसरे धर्मों के लोगों जो है वो नहीं, आप आराम से बोल सकते हैं बीना बहन, डरने की कहां है? आप आराम से नाम बोलिए। हाँ, तो वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उनको ही बेस्ट समझे बिना उनको ही बेस्ट बताने के लिए हमारे सनातन धर्म का जोक करते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं। तो उन्होंने आनंद भाई ने ये सवाल किया हुआ है कि हाउ कैन वी कंफर्म। बीना बहन, बिल्कुल समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि सनातन धर्म की व्यवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म जो है आदि अनादिकाल से, मतलब कोई 100, 200, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल पुराना नहीं है। ये कई लाख करोड़ वर्ष पुराना धर्म है। 1-2 साल ठीक है, हमारे पास प्रूफ जो है वो 5000, 10,000, 15,000 साल पुराने ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि वेदों की रचनाएं बहुत पहले हो गई थी। और जिस तरह की फिलॉसफी हम वेदों की पढ़ते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि हमने, मैं दया भाई का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति ही हमेशा सवाल करेगा। तो दया भाई को राइट्स है ना करने का, तो उन्होंने जो किया वो उन्होंने अपने राइट्स का उपयोग किया। दया भाई ने मुझे कहा कि नहीं बापू, हम आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स ही इज स्पिरिचुअल, ही हैज क्वेश्चंस और ही हैज राइट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट मी कि नहीं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। पर प्रॉब्लम इज दैट कि मैं दया भाई से, आप सब लोगों से एक बार कोशिश करूंगा कि जो मैंने भक्ता कल्चर सेंटर में जो प्रूफ्स बताए थे, कभी एक बार खोल करके उनको जानिए और उनको पढ़िए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, तब आपको पता चलेगा कि 600 साल पहले कबीर साहब जैसे महापुरुष ने जो बीजक में लिखा, सेम चीज 1300 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु की आराधना में लिख दिया था कि मेरे शिव तो ये है। कोई डिफरेंस बताया ही नहीं। उन्होंने किसी पार्वती के प्रति शिव तो बात की नहीं। सेम प्रॉब्लम इज दैट एक्सेप्टिंग बिहेवियर, चाहे आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, स्वीकार करने का बिहेवियर पहले, सबसे पहले हमें अपने अंदर पैदा करना हो, और वो तब आएगा जब हम पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि इस्लाम की बात की, मैं क्लियर कंडेम कर रहा हूं, 3-4 बड़ी मोटा मोटी चीजें हैं इस्लाम की, अगर उसमें वो थोड़ा सा संशोधन कर दे तो हमें क्या प्रॉब्लम है उनके द वे ऑफ लाइफ से? हमें क्या प्रॉब्लम है वो हाथ ऐसे धोए या हाथ ऐसे धोए? हमें क्या प्रॉब्लम है वो मूंछ लंबी रखें या मूंछ कटा देवे? हमें क्या प्रॉब्लम है वो माथे पे टोपी पहने या टोपी ना पहने? हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो द वे ऑफ लाइफ जो इस्लाम का है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्सेप्ट कर रहा हूं। मुझे अगर अच्छा लगा कि उनकी लाइफ अच्छी है तो मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं और मैं वो जी सकता हूं। हिंदू धर्म तो, सनातन धर्म तो उसे रोकता भी नहीं है कि आपको जो करना है वो करो। प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप ये कहते हो कि जो हमारा अल्लाह, जो हमारा गुरु, जो हमारा ईश्वर कह रहा है वही सत्य है, अथवा तो इस दुनिया में और किसी ने जो कुछ भी कहा है वो सब बकवास है,
ये कहते ही हम स्वीकार करने की भावना, जो धर्म का मूल है कि हर धारण करने योग्य वस्तु को धारण करो, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। जब हम धारण करने योग्य वस्तु, चाहे वो कहीं से भी मिल रही हो, उसे धारण करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब हम अधर्म के मार्ग पर हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि वो जो भी धर्म है, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी धर्म के मार्ग पर नहीं है। Thank you, Ram Kabir. Anand Bhai, hope your question was answered and now you have clarity. If not, feel free to comment and we will get back to you. Guruji, time for जी प्रफुल्ल भाई, टेक ओवर करिए। આનંદભાઈ, તમે જાતે પણ ફોન કરી શકો ગુરુજીને, અને તમે કરો જ છો, તો તે વખતે તમારો જવાબનું સ્પષ્ટીકરણ તમે કરી શકો છો. नहीं, स्पष्टीकरण हो गया है कि हो इस्लाम गया। को अगर 2-3 चीजों में सॉल्व कर दिया जाए तो इस्लाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ना सनातन धर्म की किसी व्यक्ति से आपत्ति होगी। अगर इस्लाम ये कंडेम करना बंद कर दे कि अल्लाह के सिवाय इस दुनिया में, और इस तरह की बात करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति उस दुनिया में जो ये कहता है कि मेरे ईश्वर, मेरे गुरु और उसके सिवा इस दुनिया में सब कुछ बकवास है, वो बस वैसा ही है जो इस्लाम कह रहा है कि अल्लाह के सिवा। वो रोज कह रहे हैं ला इलाहा सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब पता है आपको क्या है? मेरे ईश्वर अर्थात मेरे अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। अगर कोई किसी की पूजा करता है तो वो बकवास है, यह इस्लाम कह रहा है। कुरान की इस आयत का अर्थ ये है। तो हम ऐसी कोई बात ना करें जो स्वीकार करने योग्य ना हो। इस्लाम तो गलत राह पर है, हम लोग गलत राह पे नहीं हो सकते। दैट्स इट। अभी हेमंत भाई, किसी का हैंड रेज नहीं है, तो फिर हम शांति मंत्र बोल के ये कार्यक्रम का अंत करें. शांति मंत्र बोल दो। गुरु जी को भी आज थोड़ा या जाना गुरु जी, आप हमको ये मंत्र बोल के आशीर्वाद दे दो. जी जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र की स्थापना 10,000 साल पहले हुई थी। कितने? 10,000 10,000 साल 10,000 साल पहले पहले। जिस भी ऋषि ने ये लिखा होगा, वो कबीरपंथी भी नहीं था, वो रामस्नेह भी नहीं था, वो शिवपंथी भी नहीं था। वो सिर्फ सनातन धर्म का एक ऋषि था जिसने ये कहा था कि पूरा विश्व सुखी रहे, सब साधु जन सुखी रहे, दुर्जनों के सुखी रहने की बात नहीं कही। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर कहा ओम शांति शांति। अब यहाँ पर ओम का मतलब आनंद रूपी ईश्वर से है, नॉट दैट पर्टिकुलर वर्ड वेयर वी आर स्टक्ड। ओम क्यों कहा? आई एम फॉलोइंग सोहम, व्हाई इट्स ओम? डोंट थिंक अबाउट इट। ब्लेसिंग सभी को, खूब खूब आशीर्वाद। थैंक यू गुरु जी। अभी अगले संडे भी हम गुरु जी के साथ ही सत्संग करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि प्रफुल्ल भाई, जब बात पहले समझ तक में आए तो विरोध करो। मैं आपको कहता हूँ, विरोध करोगे तभी सही उत्तर दूंगा ना। तो सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ। मैं दया भाई से बहुत सहमत हूँ, मेरा विरोध भी करो। खाली हाँ गुरुजी तमें बहुत सही कहो छो, जैसा प्रफुल्ल भाई ने मेरा विरोध किया था, थोड़ा हल्के मीठे शब्दों में किया था, पर भक्ता कल्चर सेंटर में प्रफुल्ल भाई ने भी कहा था कि बापू तमें ऐसे ऐसी तैसी मत करो हमारी। नहीं, प्रफुल्ल भाई એટલું છે કે ગુરુજી is busy next Sunday. ખબર વાત કરેલી? He is in San Diego. Yeah. प्रफुल्ल भाई। Oh yeah, I'm sorry. Yeah. अगर नेक्स्ट संडे आपको कुछ करना है तो 9 to 10। नहीं, वो तो अभी दूसरा स्पीकर हम ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, अभी सत्संग तो चालू ही रहेगा। ठीक है, done। अच्छा, बाद में आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू गुरु जी। मैं तो यही हूँ, रोज ज्वाइन कर रहे हो इसके बिना भी।
आज मिलते हैं शाम को हम डिवाइन योग सेट पे। बिल्कुल। थैंक यू। Okay. Roshan bhai, you can close the meeting. Ram to you.